Baba, who now calls himself Bhagwan in this season? जी जैसे आपने कहा कि वो भगवान बन चुके हैं सो इतना आसान नहीं होता इतने पावरफुल इंसान को कैच करना या उन तक पहुंचना तो उजागर की जंग जारी है जैसे पहले चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में हमने दिखाया था कि वो कोशिश कर रहा है वो कोशिश करते रहेंगे अब इसमें भी और उसके आगे क्या होगा देखिए डायरेक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया है तो इसके आगे क्या होगा वो आपको शो में देखना पड़ेगा Adhyan, Tinka Singh has always been Yes. a very important part of Ashram. Yes. Why does Tinka want to be associated with Baba so much? मेरे पास फिर यही होने वाला है. I don't think I can say much about कि टिंका सिंह के साथ अब क्या होने वाला है. But सबसे पहले I just want to say thank you to of course Prakash sir and thank you to Gautam sir for giving me this opportunity and I keep telling people that मैं ऐसे वक्त पे प्रकाश जी के पास गया काम मांगने के लिए जब मेरे पास काम नहीं था और कोई काम नहीं दे रहा था और प्रकाश जी ने अपना दरवाज़ा खोला मेरे लिए और आश्रम का दरवाज़ा खोला मेरे लिए एंड it was just absolutely unexpected the kind of love that Ashram got and the kind of love Tinka Singh got in the show and I'm going to always be eternally grateful for that. So that's number one. Number two, Tinka of course I'm guessing brings in some sense of relief to the show. इतना कुछ हो रहा है शो में तो टिंका के बारे में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा but I'm just want to say it's going to be very exciting. Tinka is not just going to be singing and fooling around this time. A lot more is going to happen in the plot with Tinka Singh. So I'm just very excited and I'm just very grateful. And Disha Jha, of course, was one of the main reasons why I got the show. So thank you so much. What advice would you give women to avoid falling prey to fraud babas? So That's this a is heavy for the women question. journalists in the room. So I think it's a joint responsibility of the women and the family around them as well. India is a country wherein we kind of get susceptible to magicians, babas, looking for magic to happen through them, or just to for a spiritual journey. But spirituality is a lot to do with within. Then to just make somebody a medium, we do need people that we can look up to. But at the end of the day, they are also human beings. And I think that's what we've tried to show here, that don't give somebody the power to rule your life and let go of your own sensibility or intelligence in the process. Have faith and have faith on the God above. And when you're making somebody the medium, just give them that much importance while your individuality also is there enough to make the right decisions and not get carried away. So yeah, I think Ashram that way is a very, very important series. We've highlighted something that hasn't been spoken about in the past that much, and that's why I believe everybody related to it so much, because all of us have faced similar situations somewhere, and that's quite difficult to digest. But you all have, I believe. Yes, thank you. Tridha, the power structure in the ashram seems to be changing and skewing towards you. Tell us a little bit about it. First of all, Japnam, and thank you so much, MX, Prakash sir, the entire team, a wonderful cast, and thank you, audience, for being here. It feels great that we finally get to have a press meet because post-pandemic, this must be a wonderful thing. The love our show has received, and we all are so elated to be here. Now, moving on to the character Babita that sir has given. Kya bolu? It's very important that we've just seen her like a person who just comes into like a very like she probably uses her prowess and everything to do, but we'll see a lot more this season. And I guess women are given responsibilities, and I'm sure in this season you'll find that they can take over. Yeah. Interesting. Rajiv, you're the journalist who helps Pami. We have a house full of media here. How tough was it to play this role? Firstly, thank you all for being here and thank you for the response to our show. Under the captaincy of Prakash sir, the role of a journalist was easy to play because, the inputs he gave me for my character really helped me in playing my character truthfully and honestly. And he is a journalist and he's that sort of a human being who is practical and selfless, and he basically, without caring for his own life and limb, he goes out and helps people. When he sees somebody being exploited,
he probably is one of the few people in the beginning of the series that sees the exploitation of Baba and sees Baba for who he is. So, I mean, the script was very well written. And like I said, under Prakash sir's guidance, it was easy to play the character. And it was very fulfilling to play such a part because hardly in life are we called upon to speak for somebody, not for ourselves. We, selflessly doing something for something else. I've always wanted to do, and fortunately, through the character, I got to do that. So, thanks. Thank you. Sachin, this time looks like Baba and Bhopa both are giving you a tough time. How are you managing to keep it together? सबसे पहले तो I would like to thank Prakash ji and Gautam ji and all of you. Post-COVID, as Sridhar said, that it's like a good thing that we all have had a get-together. Yes, both of them are giving me quite a tough time. And Prakash ji has, in fact, given a lot of layers to my character, which would help me face them pretty well. Now let's open the floor to actual questions from the media. If you'll raise your hand, we will pass the mic on to you. Yeah. जी हेलो प्रकाश जी नमस्ते जपनाम रेखा खान नवभारत टाइम से दर्शन जी अध्ययन पूरी टीम को सबको मैं बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी Thank you, रेखा। बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत मैं आपके जो आश्रम है उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और बहुत ही बेसब्री से मैं सीज़न 3 का इंतज़ार कर रही थी तो प्रकाश जी मेरे 2-3 सवाल हैं कि आप लगातार मतलब ये कहते जा रहे रहते आए हैं कि ये जो आपकी सीरीज़ है ये राम रहीम या आशाराम बापू से बिल्कुल भी प्रेरित नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे इसके जो इवेंट्स हैं उनमें काफ़ी समानता नज़र आ रही है तो क्या कहना चाहेंगे ये जो धर्म और आस्था की आड़ में क्योंकि हमारे यहाँ जो गुरुकुल है धर्म है अध्यात्म है संस्कृति है और जो गुरु हैं इनकी बहुत गहरी और पुरानी परंपरा है और चूंकि वहाँ तक पहुँचना कठिन होता है इसलिए आम आदमी आसान तरीका ढूंढना चाहता है अपनी इनसिक्योरिटी से निकलने के लिए और उस खोज को उस विश्वास को बरगलाने के लिए गलत इस्तेमाल करने के लिए ऐसे हमारे बीच में से कई लोग खड़े हो जाते हैं और गुरु बन जाते हैं जिनको खुद का ज्ञान नहीं है वो दूसरों को ज्ञान देने शुरू हो जाते हैं तो लगभग इन सबों के चरित्र ऐसे ही हैं चाहे वो आपने जिनका नाम लिया वो या और भी कोई बहुत सारे हैं उनके चरित्र ऐसे ही होते हैं वो इस तरह का व्यवहार इस तरह का व्यभिचार इस तरह की विकृति उनके व्यवहार में जो है वो होती ही है तो आपको कहीं ना कहीं वो शेड्स तो मिल ही जाएंगे तो हमने हमेशा ये मेंटेन किया कि हमने किसी एक को ख्याल रख के उसकी जीवनी या उसके कर्मों पे नहीं बनाया इसमें सबके थोड़े थोड़े जो पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं उनको समझते हुए रियलिटी को नज़र में रखते हुए फिक्शन क्रिएट किया है कि इसके ताने बाने किस तरह से काम करते हैं इंटरनल और दोनों एक्सटर्नल और मुझे खुशी है इस बात की आपको कहने में कि जो प्लेटफॉर्म है MX प्लेयर उसने हमें आज़ादी दी इस कहानी को इंटरप्रेट करने के लिए उसने साथ दिया जो क्रिएटिव टीम है जो कंटेंट हेड है गौतम है या तेजपाल हैं या वहाँ के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं तो इस वजह से ये इस तरह से बन पाई है वो और जब भी आप पब्लिक डोमेन की किसी भी सब्जेक्ट को सोशल हो रिलीजियस हो पॉलिटिकल हो जब भी आप टच करेंगे जो मेरी आदत सी रही है कि मैं ऐसी चीज़ें टच करता हूं तो लोगों के विचार होंगे ही होंगे लोग कुछ नकारात्मक विचार भी होंगे लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूं कि हर एक नकारात्मक सोच के सामने हजारों सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं
उसको अलग नज़रिए से, सही नज़रिए से देखने वाले लोग भी होते हैं, तो उनकी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। बाकी तो जो है सामने आएगा उसको देख लेंगे। तो प्रकाश जी, जब हम एक रिलीजन की बात करते हैं या राजनीति की या किसी तरह की कट्टरता की, तो उसके अनुयायी भी होते हैं, उसके विरोधी भी होते हैं। जैसे एफआईआर भी दर्ज हुई थी शुरू में, आप पर इंक भी फेंका गया, अब जैसा अब ये तीसरा सीज़न है, तो कहीं किसी तरह का एक भय है कि और इस तरह की चीज़ें जो कि पब्लिक डोमेन में भले हों, लेकिन सिमिलैरिटीज़ से किसी न किसी बाबा के या उस तरह से सामने आएंगी, तो और कोई विवाद या किसी तरह की विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कोई आशंका है आपके जहन में? आशंका जरूर है, कहीं कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि हमने विषय ऐसा चुना है जो कहिए कि समाज का विषय है, लोगों से संबंध रखता है, किसी एक व्यक्ति या एक कल्पना की कहानी नहीं है। और मैं ये कहूँ कि मुझे डर नहीं लगता है तो वो भी बात गलत है, डर भी लगता है, लेकिन डर के जीना अच्छा नहीं लगता। तो उसके साथ जीता हूं। और हमेशा से मन करता है कि जो कहना है वो तो कहना ही है। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से चोट पहुंचाए बगैर अगर कोई बात मैं कह सकूं तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको कहूं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो व्यवसायिक हो। बाकी पत्थर फेंके जाते हैं, गालियां पड़ती हैं, एफआईआर होते हैं, चलो कोई नहीं, लोगों के हाथ मजबूत होंगे। तो आपको या आपकी टीम में से किसी मेंबर को कभी किसी तरह का कोई थ्रेट मिला है? पता नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं मिला है। पूछना चाह रहा था कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक वक्त था जहाँ पर अंडरवर्ल्ड रूल करता था, एक टाइम था। आज आप इस दौर में किसको निराला बाबा समझते हैं हमारे बॉलीवुड के? कौन है जो जिसका दबदबा चलता है? नहीं, मेरे सब साथी तो मुझे ही समझते हैं, मुझसे बड़ा निराला तो कोई है ही नहीं। एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो यू फील के मैं भी इंडस्ट्री में ही हूँ। आई नो, आई अंडरस्टैंड। मैं किसी और का नाम क्यों लूँ यार, मैं ही हूँ। आपने प्रकाश जी को अप्रोच किया था जी। तो कभी ऐसे वक्त में किसी बाबा या फिर कोई तावीज या टोटका वोटका ऐसी चीज़ों में आप कहीं चले गए थे कभी? आई थिंक आप किसी भी फील्ड से हो, आई थिंक ह्यूमन बींग्स इन इट सेल्फ आर वेरी इनसिक्योर। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आज मैं कोई रिंग्स भी पहन रहा हूँ तो आई इवेंचुअली रियलाइज इन द पावर ऑफ एनर्जीज एंड नथिंग एल्स। एंड ऑफ कोर्स मैं इनसिक्योर था, और मैं भी पंडित जी और बाबा जी और मेरी कुंडली देख लीजिए, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा। बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी मेहनत ही सब कुछ है, जो मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया। तो ये सेट कि ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जाते हैं, कंसल्ट करते हैं एक दो बार, बट इवेंचुअली इट्स समथिंग दैट यू जस्ट नेवर गिव अप। और मेरे साथ भी आई थिंक यही हुआ कि जब भी मैं बाबाओं के पास गया और मैंने पूछा, सब कहते थे अरे इस डेट पे ये होने वाला होता, कुछ नहीं था लाइफ में। तो जब मैंने पूछना छोड़ दिया लाइफ में और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की, उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई। मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम हुआ भी। हाँ बिल्कुल। हेलो, So, गुड आफ्टरनून यार प्रकाश जी। मुझे आपसे पूछना है कि ये हमने मतलब बाबा तो काफ़ी देखे हैं, लेकिन रियल बाबा और फ्रॉड बाबा हम कैसे डिफाइन कैसे समझे उनको? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप पहचान सकेंगे कि नहीं। आपकी अपनी समझदारी में कि रियल कौन बाबा है और फेक कौन बाबा है आप पहचान पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कोई परिमाण नहीं होता, कोई परिभाषा भी नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना दोस्त, आप उसको कैसे छूते हैं उसको एक क्षण में पता चल जाता है
कि इसमें प्यार है कि तिरस्कार है कि वेदना है कि धक्का है, एक क्षण में बच्चे को पता चल जाता है कि आपने किस तरह से छुआ है उसको। हम सब जानते हैं, ये सब हमारे अंदर की कमजोरी है, अपनी कमजोरी है कि हम उसमें अपना विश्वास टिका देते हैं। एक गलत पॉलिटिशियन में, गलत बाबा में, गलत गुरु में, ये हमारी अपनी कमजोरी है। हम मेहनत करना नहीं चाहते। जब हम मेहनत करना शुरू करेंगे और जब हम अच्छे से सोचना शुरू करेंगे और जब हम सही पहचान करने की कोशिश करेंगे, दुनिया बदल जाएगी। राजीव जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आपने एक्टिंग करके बड़ा इम्प्रेस किया हमें। जब आपने तावीज़ उतारी तो हमको लगा कि आपका रोल कितना लंबा रहेगा, आगे कितना चलने वाला है। रोल कितना लंबा चलने वाला हाँ है? जी, हाँ जी। तो वो तो आपको देखकर ही पता चलेगा। दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे है। जी प्रकाश जी, आप एक्टिंग कभी करेंगे अभी? ये सवाल दर्शन जी से है? नहीं, आपसे, प्रकाश जी से। राजीव ने पूरा जवाब नहीं दिया मेरे को। आपसे मेरा जो सवाल है कि आपकी एक्टिंग भी देखना चाहेंगे हम लोग। मेरा प्रोफाइल इन्होंने लिया है अभी। आपके दो शब्द। नहीं, करेक्ट, वेरी सून। दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे है। थैंक यू। हम सब हर रोज इन लोगों से सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ कश्मीर फाइल्स, दिस आश्रम 3 इज ऑल्सो लुकिंग रियली गुड। स्पेशली ट्रेलर में आपका काफ़ी अच्छा किरदार दी। 3 एपिसोड्स हो चुके, 3 सीजन हो चुके। किस तरह के एक्सपेक्टेशन आपके एंड से, आपके फैंस एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? एक्चुअली थैंक्स टू प्रकाश जी और गौतम जी, क्योंकि प्रकाश जी ने जब हमारा पहला ट्रेलर आया था फर्स्ट सीज़न का तो बहुत प्यार मिला था, और उसके बाद हमारी आश्रम ने थैंक्स टू एमएक्स प्लेयर और गौतम जी जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे आपने कहा कि सारे फैंस किसी चीज़ की भी प्रमोशंस चल रही हो सबसे पहले पूछते हैं कि आश्रम 3 कब आ रहा है। कोई पोस्ट डालो सोशल मीडिया पर, सबसे पहले पूछा जाता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है। सो इस तरह का प्यार मिला है। तो इस सीज़न में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शोल्डर्स पर कि और मेहनत करनी है, क्योंकि इतना प्यार मिला है लोगों से, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। सो हमने कोशिश की है, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट एपिसोड देखा और आपको पसंद आया, और जिस तरह का ट्रेलर, हमारे ट्रेलर को प्यार मिल रहा है, कुछ ही दिनों में मिलियंस, कितने मिलियंस को क्रॉस कर चुका है और हर इंसान वेट कर रहा है 3 जून का। सो उसके लिए हमने जी जान से मेहनत की, और फिंगर्स क्रॉस्ड, हमें उम्मीद है कि इस बार भी लोगों को उतना ही, उससे बल्कि 3 गुना ड्रामा देखने को मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, और वो एंजॉय करेंगे इस शो को। अध्ययन जी, मेरा सवाल आपसे भी है। अध्ययन जी, हाँ जी। हाँ, जिस तरह आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि मैंने प्रकाश जी के साथ जाके बात की और मैंने रोल के बारे में कहा जी, डू यू थिंक द वर्ड नेपोटिज्म ऑलवेज वर्क्स फॉर मेनी वन बट इट हैज नॉट वर्क इन योर फेवर? थैंक यू फॉर सेइंग दैट। इट्स बीन 10 years, इट्स नॉट वर्कड फॉर मी। तो नहीं यार, आई थिंक अगर आज आप देखें तो आलिया भट्ट जब करती है गंगूबाई तो उसको उतना ही प्यार मिलता है जितना कार्तिक आर्यन को मिलता है भूल भुलैया के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही एक फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन था जब नेपोटिज्म के बारे में बातें करना लोगों ने शुरू की थी। एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एक एक्टर के बारे में, और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितने भी पोस्टर खरीद लें, फ्रंट पेजेस खरीद लें, उससे कुछ नहीं होता। इवेंचुअली इट्स द ऑडियंस, और ये नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता यार। मतलब मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ लाइफ में, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जब मैं आश्रम में आया और 10 साल की मेरी भी एक मेहनत रही है लाइफ में, स्ट्रगल रही है लाइफ में, जो शायद अभी बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काम किया, और एकदम जिस चीज़ से मैंने, बिकॉज मैं इतना हार चुका था लाइफ में, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। और जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा और जब आश्रम आई तो अगले दिन से क्या हुआ इंडस्ट्री में और क्या हुआ, आई कांट टेल यू ऑनेस्टली। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। सो ये नेपोटिज्म से बॉस कुछ नहीं होता यार। Prakash ji, my question is for you.
मेरे पे एक सवाल है, अनुप्रिया से मेरा सवाल है और त्रिधा से भी है मेरा सवाल, हम लोग से पूछा नहीं जा रहा था, इसीलिए आप लोग लड़कियों से तो बात ही नहीं कर रहे। मैं डर रहे हैं। वही चल रहा है सब कुछ। आप लोग डर रहे हैं इनसे बात करने में? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आपके पास है इनके लिए सवाल? बेस्ट हियर। तो पहले आप पूछ लो। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, सवाल बना क्यों नहीं रहे? आपके यहाँ होने से कुछ सवाल बनने चाहिए थे, वो हो क्यों नहीं रहे? So he's the only male who's progressive and thinking about the other gender as well. Clearly. Tridha. Okay, आप लोग Prakash कुछ ji, my पूछे तो question. जवाब देंगे हम। Prakash ji, my question is for you. This is the first time we are meeting after the launch of this series way back in 2020. So, what made you actually think that Bobby Deol was the right choice as the title role, you know, as the villain? Because this is something which probably he did only occasionally in the movies, 1 or 2 movies. Abbas Mustan. आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? आपके पास मैं क्या ऐसे था? पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं नजर आया कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव। Okay. जो मेरा जो कैरेक्टर था, उसकी प्रेजेंस, पर्सनालिटी और अंदर के लेयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत पहले से समझ रहा था कि इसके पास बहुत बड़ा रेंज है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ है कि हमारे पास दूसरा कोई नाम नहीं आया। मैंने बॉबी देओल का नाम कहा और हमारे एमएक्स प्लेयर ने हमारी हर डिसीजन को, उल्टे सीधे जितने डिसीजन हैं उसको साथ दिया है। तो उन्होंने बिल्कुल हाँ कहा और परिणाम आप देख सकते हैं कि बॉबी देओल कहाँ से कहाँ, बाबा कितने बड़े हो गए हैं। अब तो शायद ऑल्टरनेट सोच भी रहे हैं कुछ। Right. Prakash, Justin here from PTI, towards your left slightly. Yeah. So last year when you were making the series, you of course were attacked. The set was ransacked. Was there any point, sir, that as a filmmaker you felt angry that your voice was being suppressed, or at any point did that incident sort of make you alter the storyline of the series in any which way? It was only a 1 hour kind of a show, which some guys came and didn't, not on the set, but they broke some glasses or something of that sort. They did some kind of shouting which we couldn't understand, and they made a mayhem and they went away. Exactly, it took 1 hour. After they were taken care of within an hour, we went back to our shoot and we continued the shoot and we finished the schedule of that day. See, these things are expected in our society because the society has all kinds of people. They will behave rationally, irrationally, absurdly, whatever it is. We all have that attitude. And I look at it in a very natural way. It came and it went. We didn't alter anything. We didn't have to do anything because there was no dialogue. If there was a dialogue, we could have spoken, we could have said, we could have talked. But there was no dialogue. It was just like you're sitting in a house watching a TV and a stone comes and breaks the glass of your house. And you peep and look outside and you see somebody running away. And that's it. What can you do? It's just that sort of a thing. अगर कहीं खड़े होके बातचीत होती तो फिर बदलने की बात होती या बढ़ाने की बात होती, कोई भी बात होती, बात तो हुई नहीं। मैं आज तक इंतजार कर रहा हूं कोई बात करे आके। बट सबसे बड़ी बात यही है ना कि हम उस जमाने में पहुंच गए हैं जबकि बात करना ही नहीं चाहते और हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि एक टेलीफोन भी जो है ना उसका इस्तेमाल बहुत समय जमाने तक हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए करते थे। आज टेलीफोन का इस्तेमाल एक दूसरे से बात नहीं करने के लिए करते हैं। प्रकाश जी दैट्स व्हाट इट इज।
मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं, मैंने किसी एसोसिएशन की तरफ हाथ बढ़ाया नहीं, ना ही पुकारा। कुछ लोगों ने जिनने हमारे समर्थन में बात कहनी थी, जो दुख व्यक्त करना था, उन्होंने कहा। मैंने मतलब अपना विश्वास काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा कि मैंने किसी से कुछ कहा हो या मांगा हो या कुछ किया। हम अपना काम करते गए। प्रकाश जी, यहाँ पे प्रकाश जी, हेमंत सांगानी। हाँ जी हेमंत जी। प्रकाश जी, ये आश्रम जो सीरियल है बड़ा पॉपुलर हुआ है, पब्लिक डोमेन में रहा, काफ़ी फैक्ट है, आपने उसको फिक्शनलाइज किया है। मुझे आपसे शुरुआत करनी है, बाद में गौतम से, एंड द होल कास्ट सिटिंग ओवर देयर। ये अध्याय ने तो दिस बताया कि उसने अपने कमज़ोर समय में ही अप्रोच सच बाबाजी ने। होता क्या है कि इन बाबाओं को मिनिस्टर से लेके पॉलिटिशियन से लेके हर कोई अप्रोच करता है, सबको चाहिए सिद्धि, चाहिए इमीडिएटली ऊपर आना है। तो आप लोगों ने कभी अपने रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है कि आप इस तरह के बाबा को या पंडित को या मांत्रिक को, तांत्रिक को कभी अप्रोच किया हो आपने अपने लेवल पे, और फिर रियलाइज किया हो कि नहीं ये तो मैंने पता करके, ढूंढ करके, समझ करके सच्चे सिद्ध बाबा लोगों के साथ संगत की है। पहाड़ों में, बनारस में, गांव में जो लोग अपनी साधना में लगे हैं, जो लोग अपने आध्यात्म में लगे हैं, और बड़े गहरे आध्यात्म में हैं। हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो बहुत ही संगीन परंपरा है, और बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ वो लोग काम करते हैं। वो लोग इन चमक दमक और ये जो बाबाओं के आप खेल देखते हैं उसमें नहीं रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुरु हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं हमारे, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं। हमें महसूस होता है कहीं कभी किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो हमें वहाँ का पावर महसूस होता है, क्योंकि वहाँ लोगों की आस्था जमा रहती है। जब हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर में सब विश्वास करने लगते हैं तो वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, वो हमारा लीडर बन जाता है, और उसकी, हमारी आस्था की जोत से, हमारी आस्था के दम पर उसकी काया बदल जाती है। यही है आस्था की बात। लेकिन जब हम हल्के से चाहते हैं कि अच्छा समोसे के साथ हरी चटनी खा लें और पास कर जाएं परीक्षा, तो फिर बात अलग हो जाती है। पंडित जी कहते रहे कि बेलपत्र में मध लगा करके और शिवलिंग को लगा दीजिएगा, बेटा पास कर जाएगा, खुद का बेटा फेल कर गया। तो जब हम उसमें वैसा उन चीजों में लग जाते हैं तो फिर सत्यानाश हो जाता है। तो इनकी बात तो करनी ही चाहिए ना, इनके छद्म को उजागर करना भी हमारा कर्तव्य है ना। और राजनीतिक वगैरह कोई ऊपर जाने के लिए नहीं करते, इनके सिर्फ इनकी जो पॉपुलैरिटी होती है, उस पॉपुलैरिटी से जो इनका वोट बैंक पर जो अधिकार होता है, उस फायदे के लिए ही जाते हैं, और उनका कोई मतलब नहीं है अध्यात्म से या धर्म से। तो हमें तो कहानी ढूंढते हैं, कहानी ढूंढे, और कहानी ढूंढे तो बहुत सारे पात्र मिले और बहुत सारे सब प्लॉट्स मिले, और मिला करके और मनोरंजन भी होता है और बातें भी खुल के सामने आती है। No, I just genuinely believe that cinema reflects society and society reflects cinema. And I think that is important to understand. And if we are managing with the story to tell what we want to tell, and even if two people understand what is being said and there is an impact created, I think that's great for us. I think that is important. And it's genuinely a reflection of both. I think it just works to both sides over. So that's what. But I've never been, no, on a personal capacity. No, I've read a lot of people. I've been inspired by a lot of people, world teachers, but personally, no, I have not yet visited a specific Baba or something. Not yet. Sir,
I would like to add something about this. मेरी फैमिली में मेरे पिताजी एक आश्रम है माँ आनंदमयी माँ का, हरिद्वार में, दिल्ली में, हर जगह पे है. तो जैसे सर ने इनसे पूछा कि आप यू हैव टू हैव फेथ और बिलीव, आपको पता चलना चाहिए कि आपसे कोई क्या इन रिटर्न ले रहा है. सो आई हैव फेथ, आई डू गो टू माँ आनंदमयी's आश्रम एंड इट्स डन मी गुड बिकॉज आई बिलीव इन इट. एंड सो मैं नहीं बोलूँगी कि हर बाबा ढोंगी होते हैं या कैसे होते हैं या क्या होता है. सो इट इज़ अबाउट वॉट यू आर गोइंग देयर फॉर एंड वॉट इज़ योर पर्पस. मेरे साथ भी आपका ऐसा ही अनुभव था ना? हाँ बिल्कुल. सर एक कहानी मैं ऐड करना चाहूँगा क्विकली. आप अपने बाबा के बारे में कुछ बताएं. हाँ बताएं प्लीज़. वेल मेरी फैमिली काफ़ी रही है. हम हरदम मेरे पेरेंट्स ने किसी ना किसी को फॉलो किया है. तो आई ग्रू अप काइंड ऑफ नॉट वेरी बिलीविंग इन द कॉन्सेप्ट बिकॉज मैंने उसके रेपरकशन ज़्यादा देखे वाइल ग्रोइंग अप. एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने समझी है इज़ नॉट जस्ट द लीडर, द स्पिरिचुअल लीडर दैट यू आर फॉलोइंग, इट्स ऑल्सो वॉट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड द पाथ दैट यू आर ऑन टू योर सेल्फ. वो डिसाइपल पे भी उतना ही डिपेंड करता है. जैसे जो हमारे बाबा जी थे वो हरदम मेरे पापा को बोला करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अपना अगर तुमने गृहस्थ जीवन लिया है तो उसकी जो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन लीविंग इट मिड वे एंड गेटिंग इन टू स्पिरिचुअलिटी. दैट्स नॉट योर कर्तव्य. आप उस लिए नहीं लिए हैं, आप आए हैं यहाँ. एंड सम पीपल आईव सीन जब वो स्पिरिचुअल लीडर्स के पीछे जाते हैं तो सब कुछ त्यागने में लग जाते हैं. जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने ली होती हैं उनको छोड़ने में लग जाते हैं, विच इज़ नॉट द राइट वे. एंड समवेयर अलॉन्ग द पाथ या तो आप, एज आई सेड बिफोर, मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं अपने लीडर के थ्रू कि कुछ ये हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कोई पास हो जाए, बिजनेस चल जाए, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स. जो अभी स्ट्रगल्स हैं आप सोचते हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगी, जो नहीं होता. वो खाली श्रम, वो खाली हार्डवर्क से ही होता है. आप लीडर ढूंढते हैं फॉर पीसफुलनेस, फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी. एंड मेरे ख्याल से, एज त्रिधा ऑल्सो सेड, जस्ट एडिंग टू दैट, आप किस चीज़ के लिए उस पाथ पे निकले हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइल मेंटेनिंग योर ओन इंडिविजुअलिटी एंड सेंसिबिलिटी, and not giving somebody else the power to completely rule over you, rather to guide you. And that can only happen agar aapki khud ki individuality bhi aapke saath hai. So yeah, I don't know whether I've really elaborated on the point, but well. Gautam sir, yeah. Sir, huh? Sir over here. Gautam sir. So my first question to you is, what is the response? What response you have received for season 1 and season 2 for Ashram, and what your focus or expectation is there from Ashram 3? Well, the response for the first 2 chapters have been absolutely phenomenal. Like I said, 160 million people have watched it, and that's a lot. If I even add all the OTTs put together, it won't kind of add up, to be really honest with you, right? I think the distribution of MX makes all the difference. I think most of our cast, when they go out to, we're a proudly mass entertainment channel, and that's where we touch lives. We touch lives right at the root of India. Class 1, Class 2 cities. Those are the people who've seen it. Those are the people who loved it. People, of course, here have loved it. So what has happened is that this is one of those shows on our platform that has actually cut across all barriers, right? There's age, SEC, income, gender. Nothing has stopped people from watching the show. And there are very few, and trust me, from the film industry, everybody tries to get a universal story. Everybody wants to get a universal story. It's very rarely that you find one. And I think that the love and affection that consumers have given us has been absolutely phenomenal. As in, to trend in 6 hours on all social media platforms organically, it's not possible. It doesn't happen very often. It's just the pure love of the consumer that has worked for this show, and the love that everybody sitting here has got. It's the effort that has been put by Prakash Jha and team at PJP, at our team, the cast, the crew. They've really, really worked hard, guys. You have no idea, to put and mount something at this scale is not easy. The expectation becomes much larger from the consumer side, and it becomes tougher with every season because the novelty factor does wear off, right? People know now Baba does this and Baba does that,
and to keep that sense alive, to keep that thing alive, is a very, very, very tough job. And just kudos to the entire team sitting here. That's possible. Expectations are very, very large. That much I can guarantee you. Not from MX, but from the viewer largely. Excuse You me. were speaking. सर मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगा जहाँ त्रिधा ने इसके बारे में बात की कि जब आप बाबा या गुरु जी के पास जाते हैं तो वो आपसे मांगते क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी गुरु आपको भी ढूंढ लेते हैं। और मैं एक बहुत पर्सनल क्विक कहानी बताता हूँ आपको। जब मैं सारे बाबा उसके पास गया, जब आश्रम के 1 महीने रिलीज़ के पहले, when I was in massive sort of going downhill emotionally कि भाई आगे क्या होगा, काम नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला, आश्रम को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, एक बहुत ही स्ट्रेंज फ़ोन कॉल आया मुझे श्री रविशंकर का। ना मैं उनको फॉलो करता हूँ, ना मैं कभी उनसे मिला, और ना ही कोई रीज़न था उनको मुझे फ़ोन करने का। और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और my father came to my room, he said, I said maybe it's a prank call, why would Shri Ravishankar call me, but in the next 5 minutes I was on video call with him and he said, मैं जानता हूँ that you've not been able to sleep, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, mark my words, your life is going to change and I know it. And I said, why are you calling me? He said, I dreamt of you, I felt like calling you, and he called me. And that is when ashram came after 1 month and my life changed. It's just Guru, sometimes the right Guru can find you also, was my point. And it's a miracle, but it's just unbelievable. Prakash sir, my question to you is, after so many threats and consequences, what inspired you to make part 3 of this series? दोस्त, मतलब गंगा जल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, थ्रेट, और ये सारी चीजें तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं। सर आप दबंग हो। Sir, I just needed to ask. My last question to two beautiful actresses here. Yeah. Thank you. Also Sachin. Beautiful actress बोला। So, ma'am, what are your upcoming projects? Any specifically women-centric movie in your list? I mean, ये क्या क्वेश्चन हुआ इस जगह के लिए? मतलब आपने पूछ के भी ऐसा कुछ पूछा। आ रहे हैं, काम आ रहा है। Asur is coming. There's a film called Gubar with Vinay Pathak. Women-centric role एक है आगे भी जो एक मूवी करने वाली हूँ। बाहर में यही बात दर्शन से पूछ रही थी कि मुझे बहुत एक्शन करना है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए? I'm really not sure. But well, yeah, I think it's all upon the viewers. It's upon you journalists to support actors like us and to give women the due that they deserve and appreciate work coming in. And I think things have become much better now. काफ़ी सारा अच्छा काम हो रहा है, irrespective of the gender. And good scripts are being written. This is the best time, I think, for Indian entertainment industry. And I don't think we have reasons to complain. It can only become better from here. प्रकाश जी, हेलो। हाँ जी। लिपिका। ये कभी त्रिधा का बात। I'll tell you. Ek Badnaam Ashram 3 is coming on 3rd of June. You must watch that. प्रकाश जी, Sridhar, we'll just take the questions because Hemanji's questions are left to be answered by Rajiv, by Darshan, and by Sachin. Yes. If you just respond to that question which Hemanji asked, if you had any personal experience. हाँ, बस वो ये आप तीनों आप ये question मेरे को छोड़ के। जी हाँ, गुरु के पास गए हैं एंड जैसे कि अध्ययन ने बताया, प्रकाश जी ने भी बताया, त्रिधा ने भी मेंशन किया, आपको खुद पता लग जाता है कि क्या सच है और क्या विश्वास और क्या अंधविश्वास है। सो हर कोई अपने कमज़ोर समय पर आई एम श्योर सोचता है कि क्या करूं, तब इस तरह की कुछ बातें आती हैं सामने। कई लोग जाते हैं, कई लोग अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। यस, मैं किससे मिला था, बट यस मुझे ये भी फील हुआ कि हाँ, वो मुझे कोई अंधविश्वास में धकेल नहीं रहे हैं। वो मुझसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, आगे बढ़ते चलो, सब अच्छा होगा। And just to answer to that question, ki even I have had the good fortune of meeting, saints and Siddh people
जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं वो पब्लिसिटी नहीं करते हैं, बेसिकली उनको करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही वो करना चाहते हैं, बट यू नो आप इंटुइटिवली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हु इज़ द रियल डील एंड हु इज़ नॉट, एंड आई फील आपका दिल आपको बता देता है. एंड सेकेंडली आई थिंक अ ट्रू लीडर, अ ट्रू स्पिरिचुअल पर्सन, अ ट्रू गुरु empowers you rather than exploits you. So that's what. जी नहीं, मैं कभी किसी बाबा के पास नहीं गया. हाँ, उजागर सिंह बाबा के पीछे ज़रूर पड़े. वो इसमें कैरेक्टर, एज ए कैरेक्टर ज़रूर मैं बाबा जी के पीछे हूँ, उनके आश्रम में गया. अदरवाइज़ मैं कभी किसी बाबा को मैंने फॉलो नहीं किया. अपने काम को फॉलो करता हूँ, पूजा ज़रूर करता हूँ हर रोज़. गॉड में बिलीव करता हूँ और मेरे लिए मेरा काम भगवान है और कोशिश करता हूँ उसी में अपनी श्रद्धा रखूँ, उसी से प्यार करूँ. प्रकाश जी, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है. प्रकाश जी यहाँ पर, वंदना बोल रही हूँ फिल्म इंडिया से. सर आपको तो बोल रहे हो कि बहुत स्ट्रेस मिले, लेकिन इसका कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हुआ है कि कोई इंसिडेंट आपको याद है कि भाई कुछ पॉजिटिव, ये सीरियल देख के उस पर्सन का लाइफ चेंज हो गया या उसका माइंड सेट चेंज हो गया? कोई इंसिडेंट आपको याद है इस बारे में? आपको स्ट्रेस तो बहुत मिले लेकिन कुछ पॉजिटिविटी भी मिली होगी पक्का. नहीं, जब भी जहां भी लोग मिले और देखा और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा आपका आश्रम, तो ये पॉजिटिव बात हो ही गई ना. नहीं, किसका लाइफ मतलब वो बिलीव कर रहा था, कुछ बच गए वो मैंने उसको फॉलो नहीं किया कि उसका लाइफ कैसा था और कैसा बदल गया. कोई मतलब उस रॉन्ग वे में गया हो और ये वेब सीरीज देख के उसने अपना माइंड सेट चेंज कर दिया, मतलब ऐसे कुछ कोई इंसिडेंट आपको किसी ने बताया? नहीं, मुझे ऐसा कोई किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जो अनुभव हुआ वो रिलेट कर पाया उस अनुभव से, जो जिंदगी में आसपास देखते हैं, समझते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस अनुभव को वो समझ पाए. कई बार क्या होता है कि चीज़ें हम देखते हैं, हम चकित रह जाते हैं, लेकिन क्यों होती हैं वो समझ में नहीं आता है. आश्रम क्या है? आश्रम की चूंकि कहानी ऐसी पसरी हुई है, फैली हुई है, तो उसका व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवसायिक क्या उसके असर हो सकते हैं, उसके ताने बाने को आप समझते हैं तो आपकी आंखें खुलती हैं. तो ऐसा तो हुआ ही है. लोगों ने मुझे बताया है, बहुत सारे लोगों ने, कि अच्छा ऐसा होता है, तो समझ में आया. अवेयरनेस हुआ है. जी. Hello sir, hello ma'am. Here, I'm Shachi from Absolute India News. My question is from Anupriya and Trida ma'am. Ma'am, being a woman, we are sometimes misunderstood as an object to be suppressed. So do you think this Baba, the character of Baba, is more like a soch, but not a character? Like there's no need to be a Baba to be like this. It is more like a soch. I'm sorry, you'll have to rephrase your question. So basically, my question is, can I ask my question, please? Yeah. No worries, you can sit and ask. बैठ के पूछे, no worries. So my question is, the character of this Baba is more like a soch. Do you think so? Because there's no need कि एक बाबा होगा तो ही बुरा होगा. Because we as a women sometimes misunderstood as a object to be suppressed. Your thoughts? So this has been going on for centuries, and it's not that men are doing it. I feel exploitation doesn't always happen because men are doing it. I feel women also throw themselves. They also think it might be an easier route to do things, you know, make something happen in their lives. So I will not always blame the men for being that, and we can't call men are being men. It's just, it happens in multiple spaces, you know. I don't think, I mean, it's not the sudden revolution that's happening. So women are not always suppressed, but yes, I'm very, very happy to the society that people are becoming more aware and they are standing up for it. And men and women, we're coexisting in a much better manner, is what I would say. So let's say exploitations are reducing, things are feeling more safe and better, right? Yeah. I think that's a wonderful question, and there are two parts to it as I see it. One, it's not about men and women, you know. आपने सही कहा कि वो एक सोच है. You know, बाबा एक जरिया बन जाते हैं क्योंकि आप उनको एक स्पिरिचुअलिटी का एक रास्ता मान लेते हैं.
आप उनसे एक तरह की कभी आप कुछ चाहते हैं उनसे, कभी मार्गदर्शन चाहते हैं, कभी आप उनसे कुछ मिरेकल्स चाहते हैं, बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम एनीबडी यू गिव द पावर टू, एंड सबसे ज़्यादा आई थिंक ये रिलीजन के माध्यम से बहुत ज़्यादा होता है, where somebody, a spiritual leader or a political party or anybody of a certain kind, they use a thing that touches your heart or can pull your strings to kind of exploit you or your sensibility and अपना काम करवाने का कोशिश करते हैं, तो वो एक सोच ही है. And yes, women are suppressed. They have been suppressed for a very, very long time. And it's upon us women and of generations, the one before us, and the one that we are, making now in the process of it, men and women both, to have respect for both the sexes and to not give anybody the power to rule your life. While respecting opinions doesn't mean that you need to inculcate them and adapt them in your life completely. जैसे सर ने कहा डायलॉग बहुत ज़रूरी है, वो डायलॉग हो ही नहीं रहा है और शायद काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है. हम चीज़ों को रीज़न आउट नहीं करते, हमें जो दिखाया जाता है वो देखते हैं, और जो हम सोचना चाहते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए हम उन चीज़ों में चले जाते हैं, राइट. एंड I wouldn't say just women are suppressed, it's men too, और आज की, I think today's the times that we are living in is a huge example of that, कि patriarchy है हमारे society में बहुत ज़्यादा. Yes, the men in many places are the ones जिसके through पूरी family में एक सोच, एक धारा चलती है, but there are very strong women models as well, and they have been, like in my life, my dadi was the main matriarch in our family, and जो उनकी एक sensibility भी थी वो पूरी family में गुजरती थी. तो एक वो strong person होता है जिससे पूरी चीज़ें family की चलती हैं, और I think वहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों को कितना जागृत करते हैं, कितना हमारे सबकी वो responsibilities हैं, खाली एक जने की नहीं है, और वो men and women दोनों के साथ हो रहा है suppression of different kinds. प्रकाश जी, on a lighter note, इन दोनों को कोई suppress नहीं कर सकता. Anupriya, hello, this is Akshay. प्रकाश जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपको. बॉबी वाज द फर्स्ट चॉइस, तो आश्रम जो टाइटल है वो भी पहला ही चॉइस था, या यू हैड टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ ब्रेन नॉकिंग, या फिर एक बदनाम बाद में भी एडप्ट किया वो? हाँ, मतलब वो कहानी अब इस बार तीसरे भाग में जिस तरफ मुड़ी है वो एक बदनाम आश्रम हो गई है, बट आश्रम जो है वो चॉइस थी, वो सजेस्टेड टाइटल थी, और वो टाइटल अच्छी लगी. और इस आश्रम से कोई जेनेरिक बात न समझें, एक खास आश्रम, एक खास बाबा, एक खास तरह की जो संस्कृति उन्होंने फैला रखी है, जिस तरह का जाल उन्होंने फैला रखा है, उसके बारे में ये कहानी है. थैंक यू वेरी मच. इट वाज such a pleasure. Okay. I'm sorry, the I'm last intervening three in between. questions from somebody who's not asked as yet. Can I ask? So Harleen, first question. Yeah. So पहले 2 seasons थे, उन्होंने already आपको एक बहुत ही that has put you on some place. तो इस बार लोगों की expectations आए हैं, तो आपने क्या homework special किया? और प्रकाश जी, एक सवाल आपसे ये है कि जब second part आया तो ये पूछ रहे थे सब third part कब आएगा? इसको देखने के बाद क्या लोग पूछेंगे fourth part कब आएगा? क्या प्रिपरेशन आप बताइए सर. I think you'll have to watch it to know. Every actor had to definitely like maintain the character. That's a different thing. Like we're shooting after such a long time. फिर दोबारा character में घुसना, that itself is a preparation. So yeah, that was most required. And of course, the character that I play turns out to be a little more mature, as you see in this. So उसके लिए sir से बहुत डांट भी पड़ी. But I think I've done okay. Anupriya, hi, this is Akshay from देखकर ऐसी सर हमारी तरफ से बोलना.
Please let them answer. यहाँ please. women centric roles की बात हो रही थी, लड़कियों को बोलने तो दो. हाँ, तो आई थिंक सर हमारी तरफ देख के कहना चाहते थे कि इन लड़कियों ने कुछ प्रेपरेशन नहीं किया, ये क्या जवाब देंगी. तो हाँ, आई थिंक हम सब एक्टर्स का एक मीडियम रहा है फॉर being able to do our characters to the best of our abilities, and that's been Prakash sir. We've always looked up to him to guide us or to tell us what exactly to do and how to bring a scene to fruition. And he's been the biggest influence when it comes to our lives since we've started working in ashram. And he was, of course, the script was great, the characters were great, but he's been the one sole reason all of us have gotten attached and been brought together. And I'm so proud to be a part of the series. And kudos to MX for being able to support such a concept. And yes, thank you to MX and sir that हम लोगों को इतना उसके लिए appreciation मिला. अब जो भी हुआ वो हाँ वही मैं जो अच्छा किया सब हमारा, जो गड़बड़ हुआ सब इसका. अनुप्रिया One sec. Let प्रकाश Prakash ji सर, answer. ट्रेलर में हमने ईशा देओल को देखा, ईशा गुप्ता को, Sorry. ईशा गुप्ता को गलती हो सकती है यार. ईशा गुप्ता के बारे में कुछ बताइए, उनके किरदार के बारे में. आपको ट्रेलर देख करके क्या समझ में आया? अच्छा, वो हमारे बाबा के अंदर का भगवान निकालने को आई हैं. इतना ही समझ लीजिए आप. अनुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे है. हमने लगातार आपको, मैम ये राइट यो मैम, हमने लगातार आपको देखा है मूवीज़ में काम करते हुए, OTT में काम करते हुए. मूवीज़ की मैं बात करूँ, वॉर में आपने देखा था, पद्मावती में देखा था, एंड टाइगर जिंदा में. बट इन सारे रोल की मैं बात करूँ, आश्रम 3 की भी मैं बात करूँ, वी हैव सीन यू डूइंग साइड रोल्स. सो व्हेन वी आर गोइंग टू सी यू डूइंग मेन रोल्स, जैसे गंगूबाई में आलिया भट्ट को मेन रोल मिला था, डू यू थिंक नेपोटिज्म हैज नेवर वर्कड इन योर फेवर? I'm not an industry kid, so how can it work in my favor? Yeah, ma'am, that's what my question is. Acha, whether it has been a hindrance? Yeah. So when we are going to see you in a leading role? मगर मैंने कहाँ आश्रम में आलिया भट्ट को कास्ट किया? नहीं, मेरा सवाल सर ये था कि अनुप्रिया मैम को हम कब लीडिंग रोल में देखने. एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है. वो क्या है, एक बात आप समझिए. आपका प्रश्न जो है ना, अच्छा होते हुए भी तर्क संगत नहीं है, क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं है. नो आप जब पूछेंगे एक एक्टर से कि कब तुमको देखेंगे लीड रोल में, लीड रोल वो तो नहीं तैयार करता ना, वो घर वो बना ही नहीं सकता, क्या करेगा? मैम, बट आपको काफी समय से हमने देखा है, OTT में भी काफी समय से देखा है. तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट दैट यू आर नॉट गेटिंग अ लीड रोल? बट हाउ कैन यू, मैं वही कह रहा हूँ दोस्त मेरे. दर्शन, ही सवाल आपसे. दर्शन. अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, एक सवाल. अनुप्रिया, Sharik, दर्शन जी. अनुप्रिया जी, Sharik, I think we can call it an end. Let's. Darshan ji. No, but I would like to thank you so for much. asking that question. Thank you so much. I would We like to request thank you for asking that everybody question. to please stand up for the photo op. Guys, let them speak. Okay, one sec. What? दर्शन, दर्शन एक सवाल. साइलेंस. Okay, दर्शन one एक sec. सवाल आपसे. Okay, we have something for y'all. If y'all will Darshan stay, ji, if y'all आपसे will एक stay सवाल है. quiet, we have something for y'all. If y'all will just stay quiet for 30 seconds. If I request you all to please stay quiet for 30 seconds. It cannot be that we have ashram and we don't have Baba Nirala with us. So I think we're lucky to have cut across all the network issues, and we will be having Bobby joining us from an ashram. देखिए, ऐसा है कि बाबा चले गए थे ध्यान करने के लिए, अब वो आश्रम से डायरेक्ट बात करेंगे हमसे. So I think it'll be a voice call. Just a sec. Please give us 30 seconds to just figure this. हाँ जी, बोलिए, प्लीज बोलिए. कहाँ है आप? एक क्वेश्चन मैम. एक क्वेश्चन. हाँ.
आप जो है वुमेन सेंट्रिक फिल्म कर रही हैं, अभी तक हमने आपको सीरीज़ भी जितनी देखी हैं, तो आप जो है एक पावरफुल आपका रोल रहता है जी। तो ये आप डेलिब्रेट अटेम्प्ट है आपका वुमेन सेंट्रिक रोल करने के लिए, ताकि इससे जो है आपको जो है ज़्यादा लोग देख रहे हैं OTT पे? I think it's a very instinctive, decision. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खाली women centric, women centric बोलना ही गलत होगा. मैंने ज़्यादातर ensemble spaces में काम किया है. Yes, अभी एक मूवी रिलीज़ हुई थी जिसमें मैं लीड का किरदार कर रही थी, लेकिन क्योंकि हमें ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिली एंड हम लोग उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाए, फार्मर्स के ऊपर थी, वो ज़्यादा लोगों को देखने को नहीं मिला, which is very unfortunate. But at the same time, I think I have always been part of projects where the stories and the characters speak to me, where I would want to play someone who's very docile, who's extremely, unsure of her voice also, because as an actor, I would want to play different shades. ये ऐसा नहीं है कि मैं खाली एक strong woman का अवतार ही play करना चाहूँगी. हाँ, मेरा ये point रहा है कि at the end of the story, what am I trying to project? मतलब अगर वो लड़की कमज़ोर है तो भले ही उस कैरेक्टर का रिडेम्पशन ना हो, बट स्टोरी में क्या उसको सही दिखाया जा रहा है, या उसको उसकी अपनी आवाज़ नहीं है तो हम उसको क्या प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, तो मुझे प्रॉब्लम होती है. बट अगर स्टोरी के द्वारा हम लोग एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज है, और उसके थ्रू हम सॉल्यूशंस या चीज़ों को एक प्रोग्रेसिव तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, देन आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम प्लेइंग अ docile or a weak character also. And I have no such parameters to judge a script. It's only because of the makers who are involved, the actors, the script itself, and the character that I'm playing. प्रकाश, आप लोगों को भूख नहीं लग रही क्या? प्रकाश जी, आप सबसे मिल रहे हैं इतने 2 साल बाद, तो इतनी खुशी हो रही है उनको. मैं जो सत्य है वो बयां कर रहा हूँ. Okay, we'll let you go. We're just waiting. I think there is some issue with the camera. So, yeah, so we can do some pictures till then. No? Sorry, just a sec. One sec. एक मिनट. Okay, ये so देखो. I think unfortunately his camera is not going to be, we're not able to get that bit, but he will come on audio. Yeah, hi everyone. Hi Bobby. Sorry I can't be there with my team, Prakash ji and everybody. Miss you guys. बाबा जी वहाँ ध्यान ठीक चल रहा है? हाँ जी, एकदम सब देख रहा हूँ मैं, तो काम ठीक चल रहा है. So he can see us, but we can't see him. हमारी जो प्रार्थना थी आपकी, जरा हिसाब किताब हो जाए MX के साथ सही तरीके से, वो सब कुछ रास्ते पे है? वो पता नहीं सर, MX के हाथ में. If there's anyone who wants to ask a question to Bobby, then this is your chance. Yes, Sohail. हाँ, पूछिए. Yes. How happy are you playing Baba, Bobby? Yes. Yeah. Yes. Yeah. I mean, for me, it was the best thing that happened in my career right now. Thanks to Prakash. He gave me a great character to play, and I'm so glad to be the audience. I've enjoyed and appreciated our work so much. Everybody in our cast has done an awesome job. It has been a great team effort, and the MX players have gone so on to make it happen the way they did it, and I think it's just one of those things that happen, and no one knows how, but it was just one of the best things that's happened. Bobby, there was one question from Mr. Hemant in the media when he asked everybody whether you've ever had a personal experience with any Baba. Not really. Apart from me, huh? Apart from Prakash Babaji. No, I've not really had experience. I've been just had a very sheltered life, and I've been blessed with a beautiful and lovely and loving family, and didn't need to go somewhere to
ask for any guidance. My parents were my guides, and I was lucky. But there are some. It's just that the show talks about people who are these bad elements in our society who take advantage of innocent people, and I think I was just very lucky that I didn't come across anyone like that. I think we won't take your time. Thank you for joining us, and making this event even more successful. Thank you so much, Bobby. Thank you. We are missing you. We are Yeah. missing Bobby. हमारे लिए प्रसाद लेके आइएगा बाबा. हाँ जी, जरूर. हाँ. Jap naam. दर्शन. जी रेखा जी. जितना भी बॉडी ऑफ वर्क है उसमें बहुत सारा एक सोशल कनेक्ट है। NH10 होने दीजिए, मैरी कॉम होने दीजिए, कश्मीर फाइल्स होने दीजिए, और अब ये आश्रम 3, एक पहले से और तीसरी तक आपकी ये सफ़र है। आप इतना घूमते फिरते हैं या अपने फैंस से मिलते हैं, कहीं इस आश्रम के बाद आपने ये देखा है कि बाबाओं के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ है, एक अवेयरनेस आई है? एक्चुअली इसके बारे में प्रकाश जी ने बता ही दिया. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रही हूँ एक्चुअली. जी देखिए, जिस तरह का प्यार हमें मिला है, हमारे शो को मिला है, वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या जब भी लोगों से मिलता हूँ पता चलता है कि वो हमारे शो को कितना पसंद कर रहे हैं. लेकिन इतना पर्सनल मैं किसी से इस तरीके की बात नहीं कर पाया और ना ही जान पाया. बट हाँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी ऑडियंस का कि उन्होंने आश्रम को इतना प्यार दिया कि 1.6 बिलियन लोगों ने इसे देखा और प्यार दिया और इसे सबसे बड़ा शो बना दिया इंडिया का. तो उनका शुक्रगुजार हूँ. बस हाँ, उनसे प्यार मिलता रहता है जैसे आपने बताया, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ इसके लिए. थैंक यू.